আজকে সকাল থেকে আমরা একাধিক কর্মসূচি দেখেছি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, যেখানে শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তী উদযাপন, ইকো পার্কের আগে শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুটের মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে এবং অনুষ্ঠান রয়েছে মিলনমেলা প্রাঙ্গণে, যেখানে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রয়েছেন। এর আগে আমরা একাধিক অনুষ্ঠান দেখেছি যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনিও ছিলেন এবং শুভেন্দু অধিকারী তিনি জানান, किंवदंती है जिन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। একটু আপডেট নিই। কমলাক্ষ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে। কমলাক্ষ, গোটা দেশ জুড়ে এবং বাংলায় তো বটেই মহা সাড়ম্বরে উদযাপন এই মুহূর্তে চলছে এবং মূল অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে মঞ্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন, অমিত শাহ রয়েছেন, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। এই মুহূর্তে মিলন মেলার মঞ্চ সরগরম এবং বন্দে মাতরম সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ঘটেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে মঞ্চে একদিকে কালচারাল প্রোগ্রাম এবং তার পাশাপাশি বিশিষ্ট জনেদের কিন্তু তাদের সঙ্গেও আলাপচারিতা এবং অনুষ্ঠান চলছে। ৫৭ জন বিশিষ্ট শিল্পীর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে এই মঞ্চে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের জীবন এবং সংস্কৃতি নিয়ে এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে প্রতিকৃতি তাতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন। আমরা এর আগে দেখেছি তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাড়িতে তিনি সেখানে গিয়ে মাল্যদান করে এসেছেন। তার আগে ইকো পার্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি সেখানে ছিলেন। সেখানে একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে তার সেই পৌরোহিত্য তিনি সেখানে করেছেন। এই মুহূর্তে সেই মঞ্চ থেকে, মিলন মেলার মঞ্চ থেকে, যে মঞ্চ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বক্তব্য রাখবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন। গোটা বাংলার বিভিন্ন শিল্প সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টরা আজকে এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানে রয়েছেন এবং লোকশিল্পীরা তারা রয়েছেন, তাদের বিভিন্ন রকম পারফরমেন্স রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ওপরে একটি তথ্যচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে, ডিজিটাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তারও কিন্তু প্রদর্শন এই মঞ্চ থেকে রয়েছে। সব মিলিয়ে আজকে দিনভর গোটা বাংলা জুড়ে একদিকে যেমন সরকারি ছুটি ঘোষণা হয়েছে, সরকারি স্কুলের পাঠ্যক্রমে যেমন শ্যামাপ্রসাদ উজ্জ্বলভাবে জায়গা নিতে চলেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় আজকে সেবামূলক কর্মসূচি, রক্তদান শিবির এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শ্যামাপ্রসাদের বেশ কিছু জায়গায় মূর্তি স্থাপন, সেই কর্মসূচিগুলি চলছে। এই মুহূর্তে আনুষ্ঠানিকতা চলছে মঞ্চে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত তারা রয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে ডোকরা শিল্পের দুর্গা প্রতিমার মূর্তি তুলে দেওয়া হলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্যামাপ্রসাদের একটি অলঙ্করণ তৈলচিত্র এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। একেবারে বলা যেতে পারে যে ঘোষণা বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর থেকে করা হয়েছিল যে এই মাটি শ্যামাপ্রসাদের মাটি, পূর্ণ মর্যাদায় শ্যামাপ্রসাদকে উজ্জ্বলভাবে এই বাংলায় ফিরিয়ে আনা হবে। তার কারণ অতীতে অর্থাৎ বারবার বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদানকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল, ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এবার শ্যামাপ্রসাদের ভাবাদর্শ বা শ্যামাপ্রসাদের যে আদর্শ, সেই আদর্শকে ঘিরেই কিন্তু এই সরকার পরিচালিত হবে, সেই কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আজকে ঘোষণা করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকে যে হিন্দুর হোমল্যান্ড বলা হয় তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কয়েক ধাপ এগিয়ে কিন্তু আগামী ২ বছর ব্যাপী কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে গোটা দেশ জুড়ে এই ১২৫ বছর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মকে সামনে রেখে উদযাপিত হবে মহাসাড়ম্বরে। সব্যসাচী, অনেক ধন্যবাদ কমলাক্ষ। श्री माखनलाल सरकार को सम्मानित करें। डॉक्टर माखनलाल सरकार जिन्होंने खुद को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित
এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি সেই ছবি দেখছি যেখানে শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তীতে শহরে অমিত শাহ মিলন মেলা প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি। श्री शौनिक भट्टाचार्य को संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। বিজেপি রাজ্য সভাপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেই রয়েছেন। अपने वाणी के लिए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करें। भारत माता की भारत माता की श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में इस 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर 2 वर्ष का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस स्वर्णोत्सव की श्रृंखला में आज पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, कलकत्ता शहर में आयोजित इस स्वर्णोत्सव में हम सब के बीच में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें हमारे गृह मंत्री जी के जो दूसरा प्रभार उनके पास में सहकारिता मंत्रालय का है, उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने के बावजूद भी आज उन्होंने हम सब के अनुरोध पर, मेरे अनुरोध पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आज इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। मैं हृदय से आपका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिन्होंने पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों के मन में पिछले 2 माह के समय में एक अमिट छाप और एक अनुपम उत्साह का संवर्धन किया है। ऐसे आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी मंच पर उपस्थित, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ में न केवल काम किया, उनके दर्शन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे श्रद्धेय माखनलाल जी हम सब के बीच में उपस्थित राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सविता, यहाँ उपस्थित सभी पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्रीगण, आदरणीय सुनील बंसल जी, सभी सरकार के अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज मंच से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं यहां आने के लिए, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए, मंच से लेकर के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक सबका। सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज इस मंच से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं यहां आने के लिए, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए, मंच से लेकर के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक सबका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब लोग यहां केवल एक महान व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए एकत्रित नहीं आए, अपितु हम एक उस ऐसे युग दृष्टा का स्मरण करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं जिसने अपने ज्ञान से, परिश्रम से, साधना से और साहस से भारत को एक नई दिशा और एक नई आशा को प्रदान किया। मित्रों, अपने बलिदान से
जिसने भारत की अखंडता को अमर बनाने का काम किया, ऐसे भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, ये संयोग मात्र नहीं है जब आज हम यहां उपस्थित आए। यह इतिहास की स्वाभाविक परिणति है। आज जब हम सब लोग यहां एकत्रित आए और कलकत्ता की इस धरती पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, एक ऐसी भूमि जिसने एक ऐसे वीर बालक को जन्म दिया, एक ऐसे साहसी बालक को जन्म दिया जो कालांतर में न केवल एक अद्वितीय अनुपम शिक्षाविद बना, अपितु अंततः एक लंबी यात्रा को करते हुए देश में एक ऊर्जा और एक आशा का संचार करते हुए अंततः राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके देश की अखंडता के लिए राष्ट्र को चेतनावान बनाने का काम करके गया। मित्रों, इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ में आज एक बात कहता हूं कि कलकत्ता की पवित्र धरती यह भारत की आधुनिक चेतना का उद्गम का स्थल है। मैं इस पवित्र कोलकाता की पश्चिम बंगाल की धरती को, रज को अपने माथे पर धारण करते हुए इसे प्रणाम करता हूं, इसको भी अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस कोलकाता की धरती से न केवल सामाजिक जागरण का ज्वार उठा, अपितु आज जब देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बीज यदि कहीं है तो वो इस कोलकाता की इस पश्चिम बंगाल की धरती से। ये राष्ट्रवाद की उर्वरा भूमि है जिसने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम दा, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेक अनेक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी अनेक विभूतियां ने इस धरती से जन्म लेकर के अपने तप से, अपनी साधना से, अपने पुरुषार्थ से एक गौरवशाली परंपरा भारत में कायम की। और उसी परंपरा के उत्तराधिकारी और सच्चे सपूत यदि कोई थे तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। मित्रों, हम सब उनको एक महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले हम सब इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने एक बड़े शिक्षाविद के रूप में मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते काम किया। आज जब भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है, आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रही है, जब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा विश्व भर में बोलबाला है, तब मित्रों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शिक्षा दृष्टि जो है वो और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। युग दृष्टा पुरुष ने यह कहा था कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम न बने, अपितु वह राष्ट्र जीवन का संस्कार बने। ऐसे राष्ट्र जीवन के संस्कार को स्थापित करने वाले और अंततः राष्ट्र की अखंडता के लिए कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते, अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले और राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले श्यामा प्रसाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। मित्रों, उन्होंने जिस विषय को लेकर के बलिदान किया था, हम सब आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी की अदम्य इच्छा शक्ति के चलते हुए 2019 में जो भी जिस विषय को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, वो 370 की धारा, वो धारा 35A की कलम, उस कलम को हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नेतृत्व में समाप्त करके राष्ट्र की अखंडता का जो सपना, जिस सपने को देखते हुए श्यामा प्रसाद जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने आप को खपा दिया था, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था, अपना बलिदान कर दिया था, उस सपने को साकार करने के शिल्पकार आज आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन में अंत तक परिश्रम और साधना करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके जिस विचार और जिस संकल्पना के साथ में देश को खड़ा किया था,
आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जब विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज जब देश को तरफ देखने की दृष्टि पूरी दुनिया की बदली है, आज जब पूरा विश्व भारत की तरफ एक आशा की दृष्टिकोण से देख रहा है, एक विश्वास की दृष्टि से देख रहा है, मित्रों, उसकी फाउंडेशन, अगर उसकी नींव कहीं रखी गई थी तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से रखी गई थी। हम ऐसे अमर बलिदानी के 125वें जन्म जयंती के स्मरणोत्सव के अवसर पर एकत्रित आए। उससे पूर्व आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान और ये 125वीं जन्म जयंती हमेशा हमेशा तक आने वाली पीढ़ियों के हृदय में वास करे, उसके लिए एक 125 फुट बड़ी प्रतिमा का जो है वो शिलान्यास करके हम आए। मैं मानता हूं कि ये एक विनम्र श्रद्धांजलि देश की तरफ से, पश्चिम बंगाल के लोगों की तरफ से, और ऐसे पश्चिम बंगाल के निर्माता और आधुनिक भारत के शिल्पकार, अखंडता के रचनाकार को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए, आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, अपितु निश्चित ही हम जो आज जो कार्यक्रम होगा और 2 वर्ष में तक जो देश भर में कार्यक्रम होंगे, आज पश्चिम बंगाल के हर विद्यालय में, हर लाइब्रेरी में, हर मोहल्ले में, हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भक्ति का भाव जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबका हृदय से धन्यवाद। भारत माता की। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।